Hello, students. Welcome to the class today. Um, children, as you know, we are into second chapter, history, and I know you all are watching the videos very sincerely. That's really nice because a lot of important points are discussed in the videos, which please note down those points whenever you are seeing the video. Consider it as a class because just see the teacher is there, the board is there. So whatever points I'll be giving, it would be helpful for you in the while you are preparing for your examinations or for some other purpose. So just see and check that you all are making note of the points discussed in the videos. Children, last video that we had done, in that last video, we were talking, of course, we are in the second chapter, history, new kings and kingdoms. In this, we are trying to understand that administrations were changing and new kings and new kingdoms were coming up. These new kingdoms that were coming up, these new kings who were establishing their empire, once upon a time, sometime, they were into a very low kind of a work. बहुत कम काम कर मतलब they were from, I won't say low caste, but they were from a category which used to work with the king, which used to follow the orders of the king. But a time came when they became so powerful that they separated themselves from the king. Are you understanding? They separated themselves. These were the Samantas. Yes, I know you all remember the Samantas, the Maha Samantas. The kings who were working, they always need help of some people. कुछ ना कुछ लोगों की मदद की जरूरत किंग को हमेशा पड़ती है. किंग इतने बड़े एम्पायर को, हाउ विल द किंग कैरी ऑन एंड हाउ विल द किंग लुक आफ्टर सच ग्रेट एम्पायर्स, सच बिग एम्पायर्स ऑन हिज ओन. So these people who were assisting the king, these people who were coordinating with the king, they became powerful with the passing on time, and they made themselves king. ये किंग्स क्या करते थे कि there were wars, there were attacks on some kingdoms. So the winner kings, they used to boast about themselves. अपने बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते थे. They used to tell about themselves कि ये जैसे कि इसको वो there used to be Brahmins in their court जो बहुत पढ़े लिखे होते थे. वेरी लर्नेड पीपल हु न्यू टू राइट, उनको कहते थे कि हमने ये इस युद्ध में इस राजा के ऊपर विजय पाई है. आई हैव वन ओवर दिस किंग, सो प्लीज राइट अ प्रशस्ति ऑन दिस. इस चीज की बड़ाई करते हुए, मेरे बारे में बताते हुए, इसके बारे में, मेरे बारे में सबको पता चलना चाहिए दैट आई हैव डन सच अ बिग वर्क. फॉर दैट पर्पस द किंग्स यूज्ड टू गेट द प्रशस्ति's written. The कभी कभी क्या होता था, अब I am writing, suppose I am a Brahmin, my king has ordered me to write about him. I have to impress him now. I am getting salary from him. I have to show him that I am very faithful to him. I am very near and dear to him. तो उनको प्रूव करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, what I will do, that I will write such a thing which is ऐसी चीजें लिखूंगी जिसमें कि some things are true, some things are not true also. Are you understanding? Some things are not very true, but then that is also mentioned in the Prashasti. That is what is mentioned here. As a Brahmin, when I am writing about my king has given me some work, my king has given me some job, so I have to prove myself. I have to show him that yes, I'm very talented and I'm very close to the king. I respect him. वो जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ. When these kind of things will come in front, तो क्या होगा? That I will write a prashasti, and in prashasti I will write great things about my king. Did you understand?
So, and I am also I'm a Brahmin. I have written a Prashasti, and I'm a very powerful person in the administration. किंग जो भी काम कर रहे हैं उसमें उनको मेरे असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, उसमें उनको मेरे हेल्प की जरूरत पड़ती है. Got it? So that is there, and they helped in the administration. Apart from that, Nag Bhatta's achievement has been mentioned. ये प्रशस्ति मैंने आपको दिखाई थी. Where it has been said, it was written in Sanskrit. और कहाँ पे मिला है? ग्वालियर. प्रशस्ति on Nag Bhatta has been written and found in Gwalior. Got it? नाग भट्ट जी के बारे में इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है. Great things are written about him, and it is describing the exploits of ruler. Exploits means his wars. किनके किनके साथ इनका वॉर हुआ, कौन कौन सी जमीन पे इन्होंने जीत हासिल की. ठीक है. ऑफ नाग भट्टा. It is written there. अब जब आप ये, I had shown you in the last video, when you see this Prashasti, you will be finding names of some places which are still very popular. Names of some places which are still very, still exist. And this Prashasti has been written 8th से 9th century के बीच में लिखी गई है ये प्रशस्ति, which is describing the greatness of नाग भट्टा. एंड उसमें बता रहे हैं कि किंग्स ऑफ आंध्र प्रदेश के जो राजा हैं, सैंधवा सिंध के जो राजा हैं, विदर्भ के जो राजा हैं, कलिंग के राजा, दे फेल बिफोर हिम. उनके सामने, मतलब नाग भट्ट के सामने उन्होंने नतमस्तक हो गए कि नाग भट्ट के पावर को मान लिया. That great is नाग भट्ट जी, the great ruler, जिनके सामने किंग्स जिस समय, and that also when he was of a very low, very he was very young, बहुत कम एज के थे. when he was of a very less age, at that time only people, the kings have surrendered in front of him. उनके सामने झुक गए हैं. तो this is showing the greatness ना. I have impressed my king. मैंने अपने राजा को कितना खुश कर दिया कि देखिए मैंने आपके बारे में बताया है, इतने बड़े बड़े महाराजा आपके सामने झुक गए. तो नाग भट्टा हैज विल बी वेरी हैप्पी विद मी. आई एम द ब्राह्मण जिसको नाग भट्टा ने कहा है कि मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखो. तो आई हैव रिटन दिस प्रशस्ति. उसमें और भी कहा है मैंने कहा कि he has won the victory, he has won a victory over चक्र युद्ध के ऊपर इन्होंने जीत हासिल की है. इन्होंने he has defeated the king of Banga means the ruler of बंगाल के भी रूलर को इन्होंने हराया है. एंड अनार्ता गुजरात के भी रूलर को हरा दिया है. मालवा, कीरत, तुरुष्का, ठीक है, वत्सा, मत्स्य, बोथ ऑल दीज किंगडम्स, इतने बड़े बड़े किंगडम्स हैं, इस पे नाग भट्ट जी ने विजय हासिल की. So I write this Prashasti and I go and show this to my king. क्या होगा? Oh wow, my king would be very happy. And what will he do? He will give me some gift. अब समझो, this king जिनके लिए, नाग भट्ट जी के लिए मैंने इतनी अच्छी सी प्रशस्ति लिखी है, he will feel very happy. He will be very very impressed with me. And he will say, इनको 100 एकड़ जमीन दान में दी जाए. Obviously he is happy now, so he will be giving me some gift now. So that is the gift. Kings rewarded Brahmins by grants of land. Kings rewarded Brahmins by grant of lands. ठीक है, 50 एकड़ जमीन दी जाए इनको.
ग्रांट मीन्स दान देना, ठीक है, आई विल बी गेटिंग इट इन दान, एंड अब मुझे दान दिया गया है, दिस हैज टू बी ऑल्सो रिकॉर्डेड, तो इसका भी रिकॉर्ड मेंटेन होगा कहां पे, द रिकॉर्ड विल बी मेंटेन ऑन कॉपर प्लेट, कॉपर जो होता है ना, ठीक है, यू नो कॉपर, कॉपर प्लेट के ऊपर में ये सारा कुछ लिखा रहेगा, दिस वुड बी रिटन ऑन दी कॉपर प्लेट, छोटी छोटी रेक्टेंगुलर प्लेट्स वुड बी मेड कॉपर का, एंड उसके ऊपर इट वुड बी, हाँ मेटल चाहिए, वो हम आप नहीं लिख सकते ना, पेन नहीं चलेगी कॉपर प्लेट के ऊपर, तो वो छेनी हथौड़े से ही उसके ऊपर लिखा जाएगा, एंड इट वुड बी रिटन इन सच अ मैनर कि इट विल बी नेवर डिस्ट्रॉयड, ओके, दिस वुड बी रिकॉर्डेड, ये जो मुझे जो दान मिला है, इट वुड बी रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट, इट वुड बी रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट की फोटो बेटा आपको दी हुई है इन योर बुक, in your chapter. I'll be showing you the picture of the copper plate. Got it? People, I am receiving the land, so I am getting it. Now, what happens is कि नाग भट्ट जी के लिए मैंने कहा, एंड उनको मेरे लिए बहुत अच्छा लगा, he felt very nice कि I have written such a nice thing for him. Now, what happens is कि when he is happy and he will be giving me land grants, जमीन जब वो मुझे देंगे तो उसको रिकॉर्ड भी करेंगे. अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट जो जमीन मुझे मिल रही है, द ग्रांट, आई एम गेटिंग द गिफ्ट फ्रॉम द किंग बिकॉज ही इज वेरी हैप्पी दैट आई हैव रिटन such a nice prashasti on him. In that land, what all things I'll be getting? लैंड 50 एकड़ लैंड है ना, उसमें हो सकता है विलेजेस होंगे, नदी भी हो सकती है, बहुत सारे कुएं होंगे, इरिगेशन फील्ड इज देयर, तो व्हाट आर द थिंग्स आई विल बी गेटिंग अलोंग विद द लैंड, ठीक है, सपोज आई गेट अ 50 acre लैंड नियर वाराणसी, सो देयर आर 10 villages in those 50 acre land, so I'll go and tell the village people कि the king has given me this land, आप प्लीज ये जगह खाली कर दो, so they will ask me ना कि आप महाराज आके कैसे बोल रहे हैं ये बात, so when they will ask me, then I will show them that copper plate, ये देखो मुझे जो दान मिला है उसका प्रूफ देखो, just see the proof that the land I have got, उस लैंड में मेरे साथ मुझे क्या क्या मिलेगा, the grant that I had got, this is mentioned, पूरा लिस्ट is there, I'll show you the list कि जो 50 acre लैंड मुझे दान में मिला, along with that land what all things I'll be getting, ठीक है, उस लैंड की क्या क्या चीज है जो कि मैं यूज कर सकती हूँ, what all things I can use. Got it? So this is what was about the prashastis. Prashasti समझ में आ गया? The complete story is there ना? So I am a Brahmin working in the court of Nag Bhatta ji. उन्होंने मुझे प्रशस्ति लिखने के लिए कहा, so I have written the प्रशस्ति for him and he would be very happy, and जब वो खुश हो जाएंगे तो he will be giving me land grant. वो मुझे 50 एकड़ जमीन जो है वो दान में दे देंगे. That is grant. Okay? तो बहुत सारे हमको वी गेट अराउंड अनयूजुअल. व्हाट हैपेंस इज 12th century में देयर इज अ बिग संस्कृत पोएम. इन 12th century a big Sanskrit poem was written. Got it? और ये जो पोएम हमको मिला है, दिस पोएम इज कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स हु रूल्ड ओवर कश्मीर, रिटन विच कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ रूलर्स ऑफ कश्मीर. अब इसके बाद पता है मैं क्या करने वाली हूं? आई एम गोइंग टू क्लैप. वाई? आपको लग रहा नहीं अचानक में हमको क्या हो गया, पढ़ाते पढ़ाते क्लैप करने लगे. आई एम क्लैपिंग बिकॉज समबडी थॉट 12th century में, in 12th century somebody thought of writing a poem. Today's 21st century going on. 21st century में हमको 12th century की जानकारी मिल रही है क्योंकि उन्होंने उस समय वो पोएम लिखा. अगर नहीं लिखा होता तो हमको कैसे जानकारी मिलती?
how we would have got the information if the writer must not have written. अब ये महान इंसान कौन थे? Who was this great person who has written this history of Kashmir? हिस्ट्री नहीं, उन्होंने हिस्ट्री सोच कर नहीं लिखा. He has just written the poem, and the poet was, नाम याद रखिएगा, कल्हाना. अब whatever he has written in the poem, please understand, इससे हमको उस समय के टेरिटरी के बारे में कितनी अच्छी जानकारी मिल जाएगी. We will be getting lot of information about that time's territory. उस समय के रूलर कैसे थे, लोग कैसे थे, किस तरह से रहते थे, कैसे अपनी लाइफ चलाते थे, काफी सारी चीजें. Lot of informations we will be getting. अब देखो हिस्ट्री कैसे बनती है, how the history is made. Please try to understand. We are reading the poem written by Kalhana, and he also has used lot of sources, including he has used lot of sources. बहुत सारी उस समय भी उन्होंने बहुत सारी फॉर राइटिंग, ये जो पोएम लिखी है ना, काफी सारी चीजें इसमें उन्होंने फॉर राइटिंग, इंक्लूडिंग क्या क्या सोर्सेस यूज किए हैं, किन चीजों का रेफरेंस लिया. ऐसे रातों रात खाली बैठे बैठे तो हिस्ट्री नहीं बन जाती ना. लॉट ऑफ एफर्ट्स आर नीडेड. बहुत मेहनत लगती है इस तरह की हिस्ट्री बनाने के लिए. सो दिस हिस्ट्री दैट इज रिटन, it is containing all the informations, dear students, please understand. Okay, and क्या क्या लिया इन्होंने? He has seen the inscriptions. But when I am writing a poem, when I am writing history, I have to refer some books. कुछ चीजें तो मैं रखूंगी ना, तभी तो हमको समझ में आएगा. And he has also used some documents, witnesses. Okay, and पहले की कुछ बुक्स होंगी या पहले के कुछ कॉपर प्लेट्स होंगे. देयर माइट बी सम कॉपर प्लेट्स, देयर माइट बी सम इंस्क्रिप्शंस, देयर माइट बी सम पिलर इंस्क्रिप्शंस. उन सारी चीजों से भी मैंने जानकारी लेके ये पोएम लिखी है. He is critical about rulers and their policies, okay, and early histories. लेकिन he is critical about rulers. अब यहां थोड़ा सा डिफरेंस. I was a Brahmin. My king has asked me to write a prashasti, so I have written great things about my king. लेकिन कल्हना ने क्या किया ना, he has given some facts about the king. उन्होंने बताया है कि किंग्स जो हैं बहुत अनपॉपुलर भी थे. The kings were not always very popular. हमेशा किंग्स पॉपुलर नहीं होते थे. Sometimes they were very unpopular also. He was critical. मैंने तो बहुत बड़ा चढ़ा के खूब तारीफ करके लिख दी नाग भट्ट जी के बारे में. But Kalhana has not written like that. He is criticizing the king for his policies. If king has done something wrong, so Kalhana has been very fair in saying कि सर गलत है. गलत है तो गलत है. Something that is wrong is wrong. That is what Kalhana is appreciated about. कल्हना की इन सब चीजों के लिए बहुत तारीफ होती है. ठीक है, फॉर द एफर्ट्स, फॉर हिज फेयरनेस. इतने खुल के अच्छी बात इन्होंने कही, इसके लिए ही इज अप्रिशिएटेड. गॉट इट? प्लीज अंडरस्टैंड. तो आई हैव रिटन. अब कल्हना को इसमें कुछ इनाम तो मिला नहीं होगा. एंड व्हेन आई एम राइटिंग समथिंग, देखो बैड नहीं कहेंगे, समथिंग इन रियलिटी. कभी कभी किंग्स बुरे भी हो सकते हैं. तो अगर वो लिख दिया है हिस्ट्री में, इफ आई हैव रिटन इट, तो किंग शुड नॉट फील बैड. आई हैव शोन द रियलिटी टू द पीपल. लोगों को मैंने सच्चाई बताई है. गॉट इट? तो आई टोल्ड यू कि these prashastis that were there and the land grants that has been made, it is a big point where we are getting lot of informations
about the rulers and their policies. Got it? हमको किंग्स के बारे में पता चल रहा है, उनकी पॉलिसीज के बारे में भी पता चल रहा है. Please understand this thing. Next, what happens is the पहले के जमाने में ना देयर यूज्ड टू बी वॉर्स. बहुत सारी जंग लड़ी जाती थी. किस चीज के लिए जंग लड़ी जाती थी? ऑल द किंग्स वांटेड मोर एंड मोर मनी. जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना ही पावरफुल किंग होगा. सो इफ आई वांट टू बी पावरफुल, आई वुड बी अटैकिंग ऑन सम अदर किंगडम एंड टेकिंग देयर मनी इन माई किंगडम. अपने किंगडम में वो सारे पैसे ले लूंगी, तो आई वुड बी बिकमिंग वेरी पावरफुल ना. मैं बहुत पावरफुल बन जाऊंगी. दैट इज देयर. ओके, सो all these dynasties that were there, all these rulers who were there, they were restricted to some places. कुछ खास जगहों पे ही ये लोग रहते थे, and आसपास की जगहों को they were rulers were ruling in specified areas. खास जगह है, some special places are there. उन्हीं जगहों पे रूलर्स रहेंगे, and they try to control other areas. आसपास की जगह, because भाई I am a ruler, I am ruling in वाराणसी, लेकिन मेरे को लखनऊ वालों को भी बताना है कि just see I am a great ruler in वाराणसी. Did you understand? I am a ruler in Varanasi, but then I need to make the other people understand and show my power. मेरे को आसपास के रूलर्स को दिखाना है कि देखो मैं कितनी पावरफुल हूं. Are you understanding? So that is what I will attack on Lucknow, being a king of Varanasi. मेरे को लखनऊ भी चाहिए. Okay, and they also tried to control other areas. Got it? आसपास के एरियाज को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे रूलर्स. जस्ट नाउ द एग्जांपल दैट आई हैव गिवन. अब क्या होता है कि सम प्लेसेस दैट आर देयर, दे आर वेरी फेमस इन द ओल्ड टाइम्स. पहले के जमाने में ना सम प्लेसेस वेर वेरी फेमस एंड ऑल द रूलर्स यूज टू फाइट फॉर दैट एरिया. ये तो हमको चाहिए, हमको चाहिए. सो व्हाट हैपेंड, वन very famous city of ancient India was Kannauj. Got it? Kannauj, गंगा रिवर के पास ही. दिस इज सिचुएटेड, दिल्ली से थोड़ा पास है ये. हाँ, you will be, I'll be showing you the location in the map में मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगी. तो it was a beautiful place जो कि सारे रूलर्स they wanted to capture कन्नौज. कन्नौज के ऊपर अपना अधिकार दिखाना चाहते थे, कन्नौज को अपने में शामिल करना चाहते थे. Why? Because it was a very good business area. Because of the kind of business that was happening in Kannauj made Kannauj very powerful, and rulers like Gurjara Pratihara, Rashtrakutas, and Pala dynasty. Okay, fought for control over this area. इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए they were fighting. Lot of fights were there. Lot of
a lot of big battles were there Kannauj के ऊपर, and three rulers, three dynasties were continuously fighting with each other, and चूंकि तीन थे, that's why it is also called as tripartite struggle. This is called कन्नौज पे कैप्चर करने के लिए tripartite struggle. तीन तरफ से अटैक कर रहे हैं, तीन तरफ से अटैक हो रहा है, एंड दिस स्ट्रगल इज कॉल्ड एज ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल. Got it? Attack from three sides. Three parties were struggling for capturing Kannauj. So tripartite struggle. Got it? So this is what we have started. New topic: warfare for wealth. पैसे के लिए कन्नौज वॉज अ वेरी रिच सिटी, तो ऑल द रूलर्स यूज टू फील कि जिसके पास भी ये सिटी हो जाएगी, वो के पास चली जाएगी, द पर्सन हु वुड बी रूलिंग ऑन दिस सिटी वुड बी वेरी पावरफुल. पैसा काफी है ना, लॉट ऑफ बिजनेस पीपल वेर देयर इन कन्नौज. गॉट इट? We will be continuing in the next video. Land grants से related there is, मेरे को जमीन मिली है, remember I told you, उस जमीन में मुझे क्या क्या मिला है. I wanted to show you that passage. Come, let's see. So students, last video we read about प्रशस्तिस. प्रशस्ति के बारे में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा एंड समझा, एंड नागभट्टा का ये प्रशस्ति मैंने आपको दिखाया था. गॉट इट? नागभट्टा हु वाज अ प्रतिहार किंग, विच ऑल प्लेसेस ही हैज़ वन. कौन कौन से रूलर्स थे जिन्होंने कि उनके पावर के सामने सर झुका दिया था. Those who have bowed down their head in front of the Nagbhatta. First we are understanding that. ठीक है, ये हम लोगों ने किया हुआ था. Today I will be showing you these copper plates. ये देखो copper plate है. अच्छा, now an explanation to this. इसके पीछे की बात समझो कि I am a ब्राह्मण. ठीक है, आई एम अ ब्राह्मण. नागभट्ट जी की मैंने इतनी तारीफ की. आई हैव रिटन सच गुड थिंग्स इन द प्रशस्ति. नागभट्ट जी इज़ वेरी हैप्पी विद मी, सो ही इज़ गिविंग मी गिफ्ट. गिफ्ट क्या है? आई वुड बहुत सारी जमीन देंगे वो, कि ओ हो यू द ब्राह्मण, आई एम सो हैप्पी, प्लीज टेक 50 acres ऑफ लैंड. वाराणसी के उधर पीछे में 50 acres लैंड है, जस्ट टेक दैट. तो मैं कहूँगी सर मेरे को कुछ आप ऐसा, somebody everybody will not believe it ना. सब लोग मेरी बात अगर नहीं मानेंगे, उनको दिखाने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए. आई नीड सम सपोर्ट. तो वो कहेंगे ठीक है, हम आपको कॉपर प्लेट पे लिखवा के दे देते हैं. ये कॉपर प्लेट है. जस्ट सी द कॉपर प्लेट. लुक एट द ब्यूटिफुल कॉपर प्लेट. कितनी छोटी छोटी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है. जस्ट सी, दिस इज ऑल राइटिंग दैट इज देयर. This language we are not understanding, but the people who are there in South India, they understand this language. और ये copper plates हमको वहीं से मिला है, which is talking about the greatness, which is talking about some grants. सोचो, by studying, this is such an important, by studying these copper plates, we came to know so many things and so many previous rulers. पहले के रूलर्स के बारे में इतनी जानकारी मिली. अब लेट अस सी दिस वन. मुझे बहुत सारी ज़मीन मिली ना, रिमेंबर, लैंड ग्रांट मिला. नागभट्टा जी इज़ वेरी हैप्पी. तो अब मुझे क्या क्या मिला है. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉपर प्लेट दैट हैज़ बीन फाउंड इन द साउथ इंडिया फ्रॉम तमिलनाडु. चोला रूलर्स ने लिखवाया था कि वी हैव डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड. कितनी ज़मीन आपको मिल रही है? by making earthen embankments. earthen embankments, मिट्टी से बॉर्डर बना दिया. मिट्टी embankment means कि वो मिट्टी की मेड़ बना के हमने बॉर्डर बना दिया है, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि ये लैंड जो है वो ब्राह्मण सुकृति को बिलोंग करती है. ओके, आई एम जस्ट साइटिंग एन एग्जाम्पल ना. सो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एंड थोड़े से कटीली झाड़ छखाड़ भी लगा दिया है, सो दैट नोबडी एंटर्स योर लैंड.
इसमें जो चीज़ें मुझे मिली, पेड़ मिले, अमरूद का पेड़, आम का पेड़, पानी है, पानी के कुएं हैं, ज़मीन मिली, कोई गार्डन है वो मिला, ऑर्चर्ड है, ऑर्चर्ड मीन्स संतरे की या सेब की खेत है वो है, ट्रीज आर देयर, वेल्स, पैस्चर लैंड, जितना भी जहाँ गाय भेड़ जाती है, बकरी जाती है घास चरने के लिए, दैट इज़ द पैस्चर लैंड। एंड विलेज मिला, एंट हिल्स, एंट के हिल्स भी होते हैं, प्लेटफॉर्म्स, कैनल्स, डिचेस, रिवर्स, सिल्ट लैडन लैंड, टैंक, ग्रेनरीज, फिश पॉन्ड, ये सब मेरी ज़मीन में, ये सब चीज़ जो है वो सब मेरी है, इट ऑल बिलोंग्स टू मी, गॉट इट। सो उसमें सर्टिफिकेट में इट इज़ रिटन to collect the taxes from it, and this was imposed by the judicial officer as the taxes, and he can get large and small wells dug, यहाँ कुएं भी खुदवा सकते हैं, ट्रीज भी प्लांट कर सकते हैं, बुशेस लगा सकते हैं, सो वाटर इज नॉट वेस्टेड एंड एम्बैंकमेंट्स आर बिल्ट। आप जितना भी लैंड आपको मिल रहा है, प्लीज सी दैट यू डू नॉट वेस्ट वाटर इन दैट लैंड। ओके चिल्ड्रन, so this is what, keep studying hard, we'll be continuing in the next video. Okay children, thank you so much and all the best to you.